there were much less pictures than the last time, than the previous time. Most of the scenes I saw, there were fragments of fighting scenes, wars or just clashes, because as it went deeper, so I had a feeling that I am in Ice Age, and so I smashed someone's head with the club, and then there was something like before I remember we cut throat of some lady being tied to a tree. And these are just the fragments, but otherwise I had a interesting feeling that I am super fast flying somewhere. I couldn't see it, but I felt it actually. I just felt that I'm being towed somewhere, and I was sweating a lot actually. ऐसा लग रहा था जैसे ये बर्फ़ के युग में चला गया हो, आइस एज में, और देख तो नहीं रहे थे लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि बहुत तेज़ रफ्तार से उड़ रहे हैं, और रास्ते में युद्ध का दृश्य था। इन्होंने भी किसी को पीटा, सर फोड़ा, कूटा, ये सब होते होते, और ऐसा अनुभव में आ रहा था कि जैसे बिल्कुल बर्फ़ के युग में हूँ। पे स्टार्टिंग जो हुई थी, सफ़ेद गाय का जो केंद्र है वहाँ पर तेज़ी से इंटर किए थे। सफ़ेद गाय पूरे कुबड़ वाली, मतलब हम्प वाली, उसके केंद्र से यात्रा सूर्य नाड़ी, उसके अंदर घुस करके फिर यात्रा शुरू हुई। अब हम लोग यात्रा पर चलेंगे। Get ready for the journey with much lighter body. So Gurudev is going to instruct for those people not to do this yatra, not to be on this travel. Vydáme se tedy na tu 10 000 let zpátky cestu, ale je to nebezpečné, zvlášť pro ty, co by mohli zůstat někde, se zachytit, zastavit, tak proto bude instruovat tyto jedince Gurudev nyní, aby se této jatry cesty nezúčastňovali. And one rider that never get yourself disconnected from your ear, be connected with Gurudev's instruction. Buďte pořád propojení, musíte poslouchat Gurudevovu instrukce, nesmíte se odpojit to ucho od těch instrukcí. एक्चुअली क्या होता है, इतने सुपर उस पर जाके कि आदमी की वापस आने की इच्छा नहीं होती। वो तो चलो बुला के आ जाते हैं, फंसते वो जाके ज़्यादा है जो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बेहोशी में गए और बेहोशी में तो कनेक्टिविटी कम रहती। जब वो प्रतिक्रिया होता है, ये क्या आ गया, वो अवेयरनेस का पहचान। मेरे ख्याल से जिनको पहले से भय हो वो बिल्कुल ना करें। Those who are scared, do not close your eyes. Co se bojí, nemusí zavírat oči. Ať nezavírají oči, tak. सिंपल तरीका है पहचान का। शुरू करते हैं, जो लोग यात्रा पे चलना चाहते हैं शुरू करते हैं। अपने पोजीशन में आए, ध्यान की, आंखें बंद करते हुए, स्माइल चेहरे पे, स्पाइन सीधी। Close your eyes, smile, zavřete oči, úsměv, आराम मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या
हथेलियों की उंगलियों को आपस से फंसा के रखना, जो भी आपको सुगम लगे करना है। एक बार सभी लोगों को जैसे आंख बंद कर मेरी आवाज़ सुनेंगे सभी लोग। जब यदि लोग फंसेंगे ऊपर कोई भी, तो 3 बार मेरी ओम ओम जब बोलूँगा ओम ओम ओम, तो सारे लोग वापस रहेंगे, आएंगे। इस ध्वनि से सब कनेक्ट रहेंगे, हमारी इस ध्वनि से सभी लोग कनेक्ट रहेंगे। So, वापस आना ही होगा, ये ध्यान रखना है। so to all of you, when you have to stay connected with the sound, when Gurudev, if at all, Gurudev says somebody is about to get stuck up, Gurudev will say Om 3 times, Om, Om, Om. The moment you hear that, you have to stop your journey, suspend it and return. Musíte poslouchat pozorně instrukce a pokud k vám Gurudev promluví 3krát Om, 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 to znamená, že musíte zastavit na své cestě. Nemůžete pokračovat. या कोई आपकी नाभि को टच करेगा तो आपको वापस आना ही होगा। Or if somebody touches your navel center, Pupek, the person, you have to come back. Jestliže se někdo dotkne vašeho pupku, musíte se vrátit zpátky. Means open your eyes. After. When somebody touches your navel, you need to open your eyes a když se někdo dotkne vašeho pupku, musíte otevřít oči, vrátit se. आप सभी आंखें खोल पाएंगे। तो सभी लोग इस साधना में प्रशस्त होंगे और यात्रा चूँकि गति बहुत ज़्यादा होगी। ध्यान रखें, जब 5000 साल पूर्व दरबार आपको ले गया था साधना में, उस कालखंड में, तो आपकी गति करोड़ों, अगर शब्दों में कहा जाए तो करोड़ों किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड थी, जो आप संभाल नहीं पा रहे थे स्पीड को। उस स्पीड से आप लोग गए थे। ये गति उससे भी 10 गुना ज़्यादा तेज होने वाली है। Like when you had traveled to 5,000 years ago, your speed was millions and millions. Now, the journey to 10,000 years backward is to be much more faster than what it was in 5,000 years ago journey. Ta rychlost, když jsme se vraceli 5000 let zpět, byla v milionech, nyní ta rychlost bude mnohem větší. It will be at least 10 times, 10x more than what you had earlier. 10krát větší rychlost než předtím. हम लोग द्वापर से भी पीछे तक यात्रा करेंगे त्रेता युग में, त्रेता की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम द्वापर की यात्रा की थी सबने, महाभारत काल का सब देखा था सबने। अब द्वापर की ओर बढ़ेंगे, द्वापर से भी क्रॉस करेंगे। तो सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन पे ना मुद्रा लगा लेंगे, पालथी लगाएंगे। So get ready. हल्की सी स्माइल, Připravte se, úsměv. रीढ़ की हड्डी सीधी, अपना ध्यान अपनी नाभि पर और धीरे 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 ऊपर की ओर, नाभि से चेस्ट पर, चेस्ट से माउथ पर, माउथ से नोज़, देन फॉरहेड पे, कूटस्थ पर, आज्ञा चक्र पर अपने आप को स्थिर करेंगे।
ओम। संगीत बजेगा, म्यूजिक पर सभी लोग फोकस करेंगे। ध्यान आज्ञा चक्र पर रहेगा, कूटस्थ पर। एंड टुगेदर विद म्यूजिक पूरा ध्यान, पूरा फोकस म्यूजिक पर रहेगा। संगीत से ध्यान पूरी तरह एकाकार करेंगे। da 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 dinna 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 da 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 dinna dinna da dinna 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 da da din da da dinna dinna निर्भय किया जाए, सभी को अभय प्रदान किया जाए। यात्रा शुरू।
सभी लोग वापस अपने अपने शरीरों में लाए जाएं। सभी लोग वापस होंगे। Say 3 times Om Namah Shivaya. Rub your both palms together and put on your eyes. Do this 3 times. Then open your eyes slowly, slowly, very slowly, very slowly. अपने आसपास देख के बताएं कौन फंसा हुआ है अभी। इस बार पुराने नौजवान तो सब वापस आ गए। कोई फंसा हुआ है? सपनी ला गए वापस? और कोई रह गया? लगता है एक मुझे रह गया गुरुदेव, है? एक हम अटक गया हूँ। हाँ वो तो रहे, पहले से था तो रहे। अब स्वस्थ दशा में वहाँ रहेगा, ध्यान की अवस्था में रहेगा। अभी भी लग रहा है गुरुदेव एक हाँ, अंश होगा। एक एक अंश सबका उस युग में छूट गया, सभी का। वो ध्यान की अवस्था में रहेगा। हर चीज़ पर पल गुरुदेव, सूरज तो था ही नहीं। हर चीज़ बहुत अच्छा, हर चीज़ पर पल। तारे धीरे धीरे करके लाल हो गए, रफ्तार बहुत देर से हरे सुरंग से रफ्तार। आकाश गंगा दाहिने साइड दिखी, लेकिन वो उल्टी घूम रही थी। उसकी गति बाएं से एंटी क्लॉक वाइज थे आकाश पर। और वहाँ पर कुछ दिखा नहीं, लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि 7-8 तपस्वी लीन है। आवाज़ आपकी आ रही, आने का मन नहीं। और अभी भी गुरुदेव ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी है वहाँ भी है। यस,
लाखों वर्षों पीछे चले गए, कई लाख वर्ष पीछे आप लोग गए, बहुत पीछे चले गए। अच्छा है। किसको किसको एक्सपीरियंस हुआ? एक्सपीरियंस किसको किसको हुआ? Or had experiences? Yes. Kdo z vás měl nějakou zkušenost? जबरदस्त। Mají pásy tu Štefan? Mám jednu zkušenost, jestli můžu. A obrázku bylo mnohem méně, ale střídaly se tam různé vesměs bojové scény a šlo to až někam do nějakého období doby ledové. Tam to někde končilo. Občas jsem měl pocit, že vidím, jak někoho třeba trefím kijem, a to bylo zvláštní, ale jinak pocit, že pořád strašně rychle, aniž bych to vnímal, viděl kolem sebe, tak strašně rychle někam frčím. A to je asi zkušenost moje. There were much less pictures than the last time, than the previous time. Most of the scenes I saw, there were fragments of fighting scenes, wars or just clashes, because as it went deeper, so I had a feeling that I am in the Ice Age, and so I smashed someone's head with the club, and then there was something like before I remember we cut throat of some lady being tied to a tree, and these are just the fragments, but otherwise I had a interesting feeling that I am super fast flying somewhere. I couldn't see it, but I felt it actually. I just felt that I'm being towed somewhere, and I was sweating a lot actually. ऐसा लग रहा था जैसे ये बर्फ़ के युग में चला गया, आइस एज में, और देख तो नहीं रहे थे लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि बहुत तेज़ रफ्तार से उड़ रहे हैं, और रास्ते में युद्ध का दृश्य था। इन्होंने भी किसी को पीटा, सर फोड़ा, कूटा, ये सब होते होते, और ऐसा अनुभव में आ रहा था कि जैसे बिल्कुल बर्फ़ के युग में हूँ। Any questions? किसी का कोई प्रश्न? इधर तो सबकी कलम चल रही है, लेकिन उधर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न, साधना से संबंधित कोई भी शंका, कोई प्रश्न? Anyone questions? Any questions? Nějaké dotazy? I have a question about erasing the memory. If it was the same effect as we experienced last time during this traveling to 5,000 years, and now it was 10,000 years. इनका प्रश्न है कि क्या जैसे पिछले 5,000 वर्ष पीछे जाने पर उस समय के रोग नष्ट हो गए, तो क्या वैसे ही घटना अब भी घटी
कि उस युग में जाकर के तमाम रोग और कष्ट नष्ट हो गए? अभी उस प्रक्रिया में नहीं गए। अब वो प्रक्रिया नहीं रही जी। No. अभी उस प्रक्रिया में नहीं गए। उस युग में इतनी मारा मारी नहीं थी। That time that you traveled actually didn't have that much of the problems, and so you were least affected, and so you are not part of that process. Ne proto, že nejste součástí toho procesu, protože v tom čase, kam jste cestovali, tam nebyly takové problémy, a takže ne. क्योंकि आप 10,000 वर्ष पीछे जाने का शाब्दिक अर्थ है कि आप लाखों वर्ष पीछे चले गए, कई लाख वर्ष पीछे चले गए। तो ये मारा मारी इतना नहीं था। दुष्ट भी होते थे, वो तपस्वी होते थे। वो भी साधक ही होते थे। केवल सोच का फर्क था। संप्रदाय अपने अपने हिसाब से बने हुए थे, लेकिन सब साधक ही थे, सभी साधक थे जी गुरुदेव, ये उस पीरियड में। अभी तक अंश अटका पड़ा है गुरुदेव। वो रहेगा, वो तो रहेगा, सभी का है अंश में। तो होता ही है, जहाँ भी जिस भी युग में जिस भी कालखंड में आपका जन्म होता है, आज से पीछे हजारों लाखों जन्म हुए हैं, सभी जगह अंश तो छूट ही जाता, रहता ही है, सभी जगह रहता है। बस दरबार ये करता है, जब आपको जिस कालखंड में यात्रा करा देता है, वहाँ पर जिस अवस्था में आप ध्यान की अवस्था में यहाँ से गए, तो वो अंश ध्यान की प्रक्रिया में सक्रिय हो जाता है और हमेशा वो ध्यानस्थ ही रहता है वहाँ, तो उसका प्रभाव आएगा। इसीलिए यहाँ बहुत अच्छा फील नहीं होगा। बहुत रूखापन सा है, रूखापन है, रूखी रोटी है, यस, यही है, सूखी रोटी। और उसका प्रभाव आता रहेगा। धीरे धीरे ये प्रभाव दरबार अभी आपके पीछे कर देगा। गुरुदेव, स्टार्टिंग जो हुई थी, सफ़ेद गाय का जो केंद्र है, वहाँ पर तेजी से इंटर किए थे। सफ़ेद गाय पूरे कुबड़ वाली, मतलब हम्प अच्छा। वाली, उसके केंद्र से यात्रा सूर्य नाड़ी, उसके अंदर घुस करके फिर यात्रा शुरू हुई। हाँ, ये तो दरबार हमने एक बार का आपको जिक्र किया था प्रसंग का, माता के कि हमने जब पूछा था बाबा से, हाँ, कि बाबा मनुष्य का जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ, पहला जन्म कैसे हुआ वो, जो उत्तर दिया था उन्होंने यही कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि गाय के पेट से मनुष्य का जन्म हुआ है, पहले मनुष्य के। तो आज अनुभव में ही आया, वापसी यात्रा में खूब तेजी से चक्र बने और उसमें अंदर चले गए, और उसके बाद फिर पीछे की यात्रा शुरू। क्योंकि आप पूरी मनुष्यता का अनुभव कर पा रहे थे जी, ठीक है ना। तो उसका प्रमाण भी हमको मिला जब हमने बताया कि माँ के गर्भ में जिस जीवाणु से बच्चे का लालन पालन होता है, गर्भस्थ शिशु बढ़ता है, गर्भ में पुष्ट होता है, वो जब बच्चा पैदा होता है तो वो जब माँ के दुग्ध में भी वही जीवाणु होता है जिससे बाहर भी आकर के उसका लालन पालन होता है। जब माँ का दूध पीता है बच्चा, उसमें भी वही जीवाणु होता है। और यही जब माँ को दुग्ध नहीं होता तो देसी गाय के दूध में भी यही जीवाणु पाया जाता है। पूरे संसार में केवल एक यही ऐसा जीव है, गाय, जिसमें वो पोषक
तत्व पाया जाता है, जीव पाया जाता है कि अगर मनुष्य के बच्चे को दूध ना मिले तो देशी गाय के दूध को अगर उसको पिलाया जाता है तो बिल्कुल माँ के ही समान होता है, इसीलिए गाय को माँ कहा गया। I had this question. I explained to Gurudev और that इससे ये सिद्ध होता है कि एक्चुअली में मनुष्य का जन्म गाय के ही गर्भ से हुआ। पहले मनुष्य का जन्म गाय के ही गर्भ से, क्योंकि उसमें वो जीवाणु मौजूद है आज भी। I asked the question that the experience that when the journey, I started on the journey, there was a very circular movement as if from outer orbit you are entering into the nucleus. A já jsem se ptal sensei, protože já jsem viděl něco, jak kdyby kruh a pohyboval jsem se, jak kdyby v trichtýři, to znamená od okraju směrem ke středu. And explained that I entered into the womb in the center of a cow, the Indian cow with the hump. Indian what? Cow? Indian cow. Oh. Inva. With the hump, yes. Yeah. Takže jak kdybych byl přímo trefil přímo do středu, indická kráva, jak má ten hrb na. So first thing was to enter into her, and then rest of the journey began. Nejdřív jsem vlastně se dostal do té krávy a pak teprve začal zbytek cesty. And I was wondering why it is. So Gurudev explained. A zajímalo mě, proč to je, proč nejdřív tohle. And he had the identical question asked from Baba as to where did humans come in the beginning? How was a human born in the beginning? Aha. A vlastně je to, souvisí to s otázkou, jak vlastně lidé, jak začali svou existenci, jak se vlastně, jak lidstvo vzniklo. And Baba had answered that human actually probably came into the human shape from the womb of a cow. A Baba na to odpověděl, protože stejnou otázku, když se dostal Baba, že lidé zřejmě se vstoupili do existence přes luno kravské. And then Gurudev further tested and verified it that the very natural quality of mother's milk of a human and that particular cow's milk are identically same. It is very difficult to make out whether it is the milk of the mother or milk of the cow. Ještě odpověděl Baba, že vlastně mléko kojící ženy a toho konkrétního druhu krávy jsou velmi podobné, že těžko je od sebe rozlišit. So that was what Gurudev explained. To vysvětlil Gurudev teďka. And also in that time everyone used to be pious and everyone were into deep penance because that was the age, whether even positive or negative, the time era that you were in, there was nothing called negativity. Even the demons and thoughts also were sadhak, also into deep V tu sadhana. dobu vlastně negativita tak nebyla, dokonce i démoni a další byli sádháci. Čili dá se říct, že ta doba byla prostá problémů a negativních energií. के इसमें जो ऑरा का निर्माण किए थे, डिविनिटी का निर्माण किए थे, उसके बीच में से जब तक चलना चाह रहे थे तो गति नहीं पकड़ रही थी, रुके हुए थे। फिर उसको तोड़ना पड़ा और तोड़ने के बाद फिर स्पीड बनी, नहीं तो कहीं नहीं जा पा रहे थे। उस चीज़ का उसके ठीक पहले वो निर्मित हो गया था कि चारों ओर पूरे सकारात्मक ऊर्जा, वाइट एनर्जी, उसके घेरे में रह करके आगे की यात्रा नहीं बढ़ पा रही थी। उसको जब तोड़े तब जा कर के चल। इस बार जितनी भी यात्रा आप लोगों की हुई,
एक सुरक्षित घेरे में ले जा करके हुई। इसलिए दरबार जहाँ तक आपको ले जाना चाहिए वहाँ तक ले गया। जी, शेल में। बिल्कुल, उसके पास से फिर वापस ले आया सभी। जी जीवन को यात्रा का जो अनुभव है ये बड़ा अनुभव है। आप सब बहुत ही परम सौभाग्यशाली हैं जो लाखों वर्ष पीछे जाकर के यात्रा करके लौटे। तो वर्तमान ब्रह्मांड में यात्रा करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बहुत ही सरल है, तो बहुत इजी हो गया। जैसे ग्रेजुएट बच्चे से कहा जाए भाई कक्षा 3 का सवाल हल करिए, इसलिए आपको उस यात्रा कराने का अर्थ इतना ही है कि आप लोग इन नीचे कहीं अटके ही ना, क्योंकि अब आपके पास एक्सपीरियंस बड़ा है, आपके जीवन को जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा है, और जो उस कालखंड में जो अंश है वो सक्रिय है साधना में, तो उसका प्रभाव आता रहेगा। तो वो बहुत भारी प्रभाव है, हल्का प्रभाव नहीं। इसलिए अब जब भी ध्यान करेंगे आंख बंद करेंगे, बाबा माँ को प्रणाम करेंगे, भोलेनाथ को माँ को प्रणाम करेंगे, और जैसे ध्यान के लिए बैठेंगे तुरंत चल देंगे। अभी इसके पहले जब लोग ध्यान साधना करते हैं, परंपरा में करते हैं, 2-2, 4-4, 6-6 महीने लगे रहते हैं, कोई अनुभव नहीं होता। यहाँ इतने तमाम लोग बैठे हैं, आँख बंद करते ही तुरंत स्पीड चले गए, अनुभव शुरू हो जाते हैं सेकेंडों में। जी। तो बाबा माँ की कृपा है, पूर्ण गुरु की कृपा है, जो सब रास्ते खुले हुए हैं, फटाफट 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 यात्रा चालू। जी गुरुदेव, क्योंकि पहला दिन जो 5000 साल की यात्रा हुई थी, तो उसमें जो रफ्तार बनी और जो दृश्य बनते चले गए, अलग अलग जगहों से गुजरते चले गए, और 10 लाख में जाकर जहाँ पहुँचे, अगले दिन जब आपने कराया तो सीधा वहाँ पहुँचे। हाँ, यस। अब जैसे हम फिर से कराएं पीछे त्रेतायुग की यात्रा, आप लाख में ही पहुँचेंगे जी, सीधा सेकेंड में। जी गुरुदेव, अभी बात करते करते लग रहा है कि जैसे 2 आँखें हैं। हाँ, बस तो बस एकाकार कर रही है। एक वहीं पर उसी रफ्तार से पहुँच गया। गुरुदेव, एक और चीज़ हुआ था कि 2 चांद, चांद तो सैकड़ों हैं, हजारों हैं। वो सुरंग से पहले 2 चांद थे। हाँ, एक इधर एक इधर, उस सुरंग से पीछे पहले जो हरा सुरंग था, और बहुत रफ्तार में पार होता गया, पता नहीं कितने करोड़ों मील की रफ्तार रही होगी। हाँ, बहुत स्पीड में जाते हैं आप लोग। जीवन की यात्रा की गति बहुत फास्ट है, बहुत गुरुदेव। उसको अंकों में नापा नहीं जा सकता है, केवल भाषा के रूप में कहा जा सकता है। जी। तो जैसे जब द्वापर की यात्रा कराई थी दरबार ने आप सबको, तो पहले दिन जाने में थोड़ा टाइम लगा, पहले दिन में समय लगा था। उड़ते उड़ते लगा कि कहाँ जा रहे हैं, उड़ते चले जा रहे हैं, मतलब भयानक गति, जबरदस्त गति। उसमें सवाल उठते, हाँ ये कहाँ आ गए, कहाँ है, ये क्या है। और जो दूसरे दिन कराया तो तुरंत पहुँच गए। जी, तुरंत सीधा सीधा ब्लैक होल पे तो वो कालखंड जुड़ गया, सिमट गया। स्पष्ट हुआ गुरुदेव। जैसे ढाल हो, इस हॉल की जिधर ढाल हो, आप एक बाल्टी जल डाल दीजिए, जहाँ जहाँ से होके गुजरेगा 10 दिन बाद आइए, उसका निशान पड़ा होगा। जी, रूट उसको जाने में टाइम देख लीजिए, वहाँ जहाँ तक लास्ट जाएगा पानी पहले दिन, उसमें टाइम लगेगा। सपोज हो सकता है 5 मिनट का समय लगे वहाँ तक पहुँचने में। 10 दिन बाद आइए, फिर वहीं पानी डालिए, 1 मिनट पहुँच जाएगा सरस से, क्योंकि वो रूट बन चुका होगा, पानी के निशान बने रहते हैं। जी बिल्कुल, पानी का भी निशान बना रहता है।